Hello students, today we will start NCERT solution for the electric potential and capacitance part 11. In last video we have done up to the question number 35. So today we will start from the question number 36, and in the question number 36 a small sphere of the radius r1 and the charge q1 is enclosed by a spherical shell of the radius r2 and the charge q2. Show that if the q1 is positive, charge will be necessary flow from the sphere to the shell, no matter what the charge q2 on the shell is. So first we draw the diagram according to question. This is the diagram according to the question. We have the sphere with the radius r1 and having the charge enclosed by it q1. Okay, and we know that always the charge reside on the surface of the conductor. So q1 charge is reside on this surface of this sphere, and also we have the spherical shell with the radius r2. On this we have the charge q2. Okay, so this is the this is the diagram according to the question, and these are connected to each other by a metallic wire. और यहाँ पर हमने एक की लगा दिया. अगर इसको हम ओपन रखेंगे तो ये आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. इसको क्लोज कर देंगे तो देन दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है, अब बताना इसमें ये है कि जो आपका चार्ज है वो स्फीयर से शेल की तरफ जा रहा है, ये हमें प्रूफ करना है. तो हमें ये पता है कि चार्ज जो हमेशा फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कर सकता है. सो नाउ राइट हियर वी नो दैट चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. अब हम यहाँ पर V1 जो है इसका पोटेंशियल कंसीडर कर लेते हैं और V2 फॉर दी स्फेरिकल शेल के लिए कंसीडर कर लेते हैं. सो V1 पोटेंशियल फॉर दी स्फीयर and V2 potential for the shell. So first of all we find out the value of the V2. Then V2 equal to Q2 upon R2 plus Q1 upon R2. Okay, so this is the potential for the spherical shell. ठीक है, due to the charge q2 and q1, and similarly V1 equal to q1 upon r1 q2 upon r2. अब इन दोनों इक्वेशंस में देखिए Q2 अपॉन R2 और यहाँ पर भी क्या है आपका Q2 अपॉन में R2, ये दोनों चीज़ें क्या है आपकी सेम है, दोनों क्वांटिटी सेम है. लेकिन Q1 अपॉन R1 एंड Q1 अपॉन R1 Q1 अपॉन R2 एंड Q1 अपॉन R1, ये दोनों की दोनों क्वांटिटी क्या आएंगी आपकी डिफरेंट आएंगी. तो इसका मतलब जो भी पोटेंशियल ज़्यादा है या कम है ये किस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, कौन सी टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है, Q1 अपॉन R2 और Q1 अपॉन R1. हमें पता है वी नो R1 इज लेस देन R2, राइट. इट मीन्स Q1 अपॉन R1 ग्रेटर देन Q1 अपॉन R2, राइट. इट मीन्स V1 ग्रेटर देन V2. ठीक है, सो V1 अगर ग्रेटर देन V2 हो गया, V1 क्या था आपका स्फीयर के लिए पोटेंशियल और V2 क्या था आपका स्फेरिकल शेल के लिए पोटेंशियल. तो इसका मतलब चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, वो स्फीयर से स्फेरिकल शेल की तरफ फ्लो करेगा. सो चार्ज फ्लो फ्रॉम sphere to spherical shell, right. So this is the question number 36. Now question number 37.
In question number 37, the top of the atmosphere is at about 400 kilovolt with respect to the surface of Earth, corresponding to an electric field that decreases with the altitude. Near the surface of the Earth, the field is about the 100 volt per meter. Why then do we not get an electric shock as we step out of our house into the open? Okay, तो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, और साथ में इसने एक और चीज़ लिखी है, एज्यूम द हाउस टू बी अ स्टेल केज सो दैट देयर इज नो फील्ड इनसाइड. ओके, सो इन द क्वेश्चन नंबर 37 there is potential in the atmosphere 400 kilovolts. Suppose this is the earth sphere, this is the earth's atmosphere, earth atmosphere, in which we have 400 kilovolt potential, V equal to 400 kilovolt, right, with respect to earth surface. Near the earth surface here we have the, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो कितना है, 100 वोल्ट पर मीटर, राइट. अब अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है. अर्थ का पोटेंशियल जो है वो क्या है आपका, जीरो, VE जीरो. ओके, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्ट है. एटमॉस्फेयर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज 400 किलो वोल्ट. अब आपके पास जो V की वैल्यू होती है, V इक्वल टू वो E इंटू डी होती है, E इंटू डी. और नॉर्मली जो कोई भी पर्सन होता है उसकी हाइट कितनी होती है, वो अप्रोक्सीमेट 1.5 मीटर होती है, राइट. तो इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इस जगह पर, वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से निकालिए, E है आपका 100, D आपकी 1.5, सो दिस विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 150 वोल्ट, राइट. तो V यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, 150 वोल्ट हो गया. अब यहाँ पर पोटेंशियल आपका 150 वोल्ट है. अर्थ पर के सरफेस पर जो आपका पोटेंशियल होता है वो आपका जीरो होता है. तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हाइट एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया. ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक यहाँ पर नहीं लगता है. तो वो क्यों नहीं लगता है, ठीक है. अब हमें ये पता है कि आपका करंट फ्लो करने के लिए चार्ज फ्लो करना चाहिए. वी नो दैट, ओके, फॉर द इलेक्ट्रिक शॉक चार्ज मस्ट फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट. भले ही हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. ठीक है, यहाँ पर V इक्वल टू 150 वोल्ट और यहाँ पर V इक्वल टू 0. ओके, लेकिन आपका चार्ज जो है वो फ्लो कब करेगा, जब यहाँ पर हेड पर आपके पास चार्ज स्टोर हो जाएगा. ठीक है, हेड के पास चार्ज स्टोर होगा. तो यहाँ पर जो स्टोर्ड चार्ज है, देखो एटमॉस्फेयर में तो चार्ज है आपका. ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ गैसेज होती है. तो एयर जो किससे बन के मिली होती है, ठीक है, आयन मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है. तो एटमॉस्फेयर में आपका चार्ज है, लेकिन इसके हेड के ऊपर कोई भी चार्ज स्टोर नहीं है. तो यहाँ क्या लिखोगे आप, चार्ज स्टोर इक्वल टू 0. कहाँ की बात कर रहे हैं, ऑन हेड चार्ज स्टोर इक्वल टू 0. ठीक है, अब चार्ज स्टोर ही नहीं है आपका, तो भले ही हमारी बॉडी क्या है, एक गुड कंडक्टर है. ठीक है, तो जब यहाँ पर चार्ज स्टोर ही नहीं है तो चार्ज फ्लो कहाँ से करेगा. सो देयर विल बी नो चार्ज फ्लो. सो देयर विल बी नो चार्ज, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे इसमें, नो चार्ज फ्लो फ्रॉम हेड ऑफ पर्सन टू द surface of earth
through the body of person, ठीक है, बॉडी के थ्रू कोई भी चार्ज आपका फ्लो नहीं करेगा, राइट। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 37A। इसमें साथ में एक चीज़ और पूछी गई है कि जो हाउस है आपका वो एक तरह से स्टेल केज बना दिया गया है एंड देयर इज़ नो फील्ड इनसाइड। ये हमें वैसे भी पता है कि जो मेटालिक कंडक्टर होता है उसके इनसाइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि जो चार्ज है वो आपका आउटसाइड आ जाता है, इनसाइड में चार्ज आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सपोज करो आपने ये कोई भी हाउस ले लिया यहाँ पर, राइट, और इसको जो है पूरा का पूरा स्टेल केज से ऊपर कवर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है पूरा हाउस ये स्टेल केज से बना हुआ है, ठीक है। हाउस फॉर्म विद द स्टेल केज, हाउस फॉर्म बाय द स्टेल केज। तो यहाँ पर E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। E की वैल्यू जीरो तो Q की वैल्यू भी क्या हो गई आपके पास, जीरो हो गई। सो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक शॉक इनसाइड द हाउस, ओके, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक शॉक इनसाइड द हाउस। सो दिस इज कंप्लीट 37A। नाउ इट्स द पार्ट B। A man fixes outside his house one evening a 2 meter high insulating slab carrying on its top a large aluminium sheet of the area 1 meter square, but he get an electric shock if he touch the metal sheet next morning। इस पार्ट में देखो हुआ क्या है कि एक पर्सन ने क्या किया, इंसुलेटिंग स्लैब 2 मीटर हाइट पर बना दी, 2 मीटर हाइट तक बना दी और उसके ऊपर एक एल्युमिनियम की शीट लगाई है जिसका एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर। इवनिंग में उसने ये बनाई और क्वेश्चन ये है कि अगर मॉर्निंग में आकर वो इसको टच करता है तो क्या उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अब देखिए अब क्या हुआ है, एटमॉस्फेयर में आपके जो नंबर ऑफ आयंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, आयंस क्या होते हैं आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब ये एल्युमिनियम क्या है आपका, मेटल है एक तरह से, एल्युमिनियम इज मेटल, एल्युमिनियम इज मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। अब होगा क्या आपका जो आपके एटमॉस्फेयर में आयंस है वो सब के सब कोशिश करेंगे कि यहाँ पर, सबके सब तो नहीं कह सकते बट जो आपके एटमॉस्फेयर में इसके आसपास जो भी आयंस होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, इस पर कंबाइन होने की कोशिश करेंगे। सो वी कैन से दैट आयंस, ठीक है, आयंस क्या होते हैं आपके चार्ज पार्टिकल, आयंस नियर टू दिस आर try to connect this सो देखो पहले थोड़ा चार्ज आया फिर धीरे धीरे, अब वो देखो पूरी रात वहाँ पर लगी रही है। तो ड्यूरिंग द नाइट क्या होगा, सो ड्यूरिंग द नाइट मोस्ट ऑफ द चार्ज, या कह सकते हो आप कि दिस मेटालिक प्लेट विल बी चार्ज्ड बाय द एटमॉस्फेयर आयंस। So during the night this metallic conductor is charged by the ions present in atmosphere. So in morning when the person touch this aluminium sheet he get shock. Okay, this is the part B.
अच्छा, यहाँ पर देखो जो ए पार्ट था इसमें हमने बोला कि यहाँ पर जो आपका चार्ज स्टोर है ऑन द हेड ऑफ द पर्सन वो क्या है आपका 0। अगर यहीं पर इसके हेड पर एक मेटालिक शीट लगा दी जाती तो ऑब्वियसली ये क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक इसको मिलता ही मिलता, बिकॉज द चार्ज फ्लो फ्रॉम द हेड टू द अर्थ सरफेस। ओके, और यही चीज़ इसमें हुई है। यहाँ पर इस एल्युमिनियम शीट ने क्या किया, चार्ज को स्टोर कर लिया। जैसे ही इसने टच किया, ठीक है, इस एल्युमिनियम शीट को, देन ही गेट शॉक, राइट। In third question, the discharging current in the atmosphere due to the small conductivity of air is known to be 1800 ampere on an average over the globe. Why then does the atmosphere not discharge itself completely in due course and become electrically neutral? In other words, what keep the atmosphere charged? देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ आयन चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो वो अर्थ से मिलकर अपने आप को डिस्चार्ज कंप्लीटली क्यों नहीं करते। ठीक है, हमें पता है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो आपके अर्थ की तरफ जाते जाते हैं और अर्थ से वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, राइट। यहाँ तक अब क्वेश्चन इज दैट कि एटमॉस्फेयर, व्हाई द एटमॉस्फेयर नॉट डिस्चार्ज इटसेल्फ कंप्लीटली, ठीक है, पूरी तरह से डिस्चार्ज क्यों नहीं करता है। अब आपके एटमॉस्फेयर में आपके थंडरस्टॉर्म भी होते हैं, लाइटनिंग भी होती है कंटिन्यूसली। ये आपका इसका मतलब जो एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली चार्ज आपका आता रहता है ड्यू टू द लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म। ओके, सो इट गेट द चार्ज बाय द लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, और साइमल्टेनियसली होता क्या है, इट गेट डिस्चार्ज थ्रू द अर्थ, ठीक है। और नॉर्मल जब वेदर होता है तो ये पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्चार्ज भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, सो आंसर यू विल राइट एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली चार्ज ड्यू टू द लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म एटसेट्रा, एंड साइमल्टेनियसली इट गेट डिस्चार्ज बाय द अर्थ सरफेस बट नॉट कंप्लीटली। इन नॉर्मल वेदर जोन्स इट गेट डिस्चार्ज कंप्लीटली, ठीक है। इट कैन लिख लीजिएगा यहाँ पर, इट कैन गेट डिस्चार्ज कंप्लीटली, दिस कीप्स द सिस्टम बैलेंस्ड, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं, देखो आपके जो आयंस होते हैं एटमॉस्फेयर में, चार्ज पार्टिकल, वो हमेशा अर्थ के टुवर्ड्स जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को डिस्चार्ज कर लेते हैं, या आप कह सकते हो कि न्यूट्रल कर लेते हैं। बट आपके जो एटमॉस्फेयर में थंडरस्टॉर्म है या लाइटनिंग है, इस तरह के केसेस, इस तरह के फिनोमिना होते रहते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो दोबारा फिर से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। लेकिन नॉर्मल वेदर में इस तरह की कंडीशन जो होती हैं वो कम होती है, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की तरह से, थंडरस्टॉर्म के जैसे, ठीक है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो कम चार्ज हो पाता है और वो अपने आप को जो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल हैं, आयंस पार्टिकल हैं, वो अर्थ से कंबाइन होकर अपने आप को काफ़ी हद तक डिस्चार्ज कर लेते हैं, राइट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सी। ओके, नाउ लास्ट पार्ट इन दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी into which the electrical energy of the atmosphere is dissipated during the lightning। देखिए अब यहाँ पर एनर्जी कौन सी होती है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है तो इसका मतलब क्या होगी, एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। तो आप क्या लिखेंगे, इन एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर देयर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब देखो एटमॉस्फेयर में आपकी लाइटनिंग होती है, ठीक है, तो इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है एटमॉस्फेयर की, वो किस तरह से अपीयर होगी या किस तरह से कन्वर्ट हो सकती है, बाय द लाइट, क्योंकि लाइटनिंग होती है आपकी। अब लाइटनिंग है तो साउंड भी होती है, तो इसका मतलब साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। अब साउंड और आपकी लाइटनिंग दोनों हो रही है, यहाँ पर साथ में एक फैक्टर और, जब लाइट होती है तो क्या होती है, साथ में हीट एनर्जी होती है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कौन कौन सी एनर्जी में अपीयर होगी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड दी हीट एनर्जी ड्यूरिंग दी थंडरस्टॉर्म एंड दी लाइटनिंग। ओके, सो इन द एटमॉस्फेयर देयर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट अपीयर, आप लिखेंगे इट अपीयर as light,
sound and heat and heat energy during the lightning and thunderstorm. Okay, so this is the question number 37 part D. ओके तो अब आपके ये क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 37 तक कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो गया। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।